Hello, students, and welcome back. This is the part 2 of the age of industrialization for class 10th MCQ. जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, ये मैंने 5 पार्ट्स में बनाया है जिससे कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकूं, तो आपको इजी रहेगा ये अटेम्प्ट भी करना, जो लिंक मैं देता हूं डिस्क्रिप्शन में। प्लस अगर आप वीडियो देखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू ग्रास्प। पार्ट 2 शुरू करते हैं। What do you mean by Gomastha? An officer of the East India Company who looked after the textile trade, a paid servant of the company who supervised weavers, collected supplies, and examined the quality of the cloth, an officer of the company who acted as a go between the company and the Indian traders, or none of the options. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले एमसीक्यू में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी कंपनी है या जो बिजनेस कंपनी थी, वो वीवर्स को किसी और से ट्रेड करने से कैसे रोकती थी। तो वो ये तरीका था कि वो उनको लोन दे रही थी, उधार दे रही थी, तो वो डेट में आ जाते थे और उनको बोलते थे कि सामान आप हमारे को ही बेचेंगे। उन सबको सुपरवाइज करने के लिए एक पेड सर्वेंट रखा गया था, कंपनी रखती थी, जो कि सुपरवाइज करती थी वीवर्स को, सप्लाईज कलेक्ट करती थी और क्वालिटी ऑफ क्लोथ भी चेक करती थी। सो गोमस्था वॉज अ पेड सर्वेंट of the company who supervised weavers, collected supplies, and examined the quality of the clothes. Which of the following countries faced labor shortage in the 19th century? कौन सी कंट्री थी जिसमें लेबर की शॉर्टेज थी 19th सेंचुरी में? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है अमेरिका faced labor shortage in 19th century. What was the reason behind new merchants that they could not set up business in the towns of Europe? तो जो नए मर्चेंट हैं वो बिजनेस क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे थे यूरोप में? ऑप्शन है scarcity of product to start any business, the rules became barrier, the powerful trade guilds and urban crafts made it difficult, or none of these. So स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो ये है कि जो वहाँ की जो पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स थी, वो अर्बन क्राफ्ट, वो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया था नए मर्चेंट्स को बिजनेस सेटअप करना. सो आंसर इज द पावरफुल ट्रेड. Which of the following innovations helped the weavers in increasing productivity and compete with mill sector? Fly shuttle, cotton gin roller और spinning jenny. तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी इनोवेशन थी जो वीवर्स ने इनोवेट की थी जिससे कि वो मिल वालों से compete कर पाते थे. उसका नाम क्या था? आंसर इज फ्लाई शटल. The ports of the Surat and Hooghly decayed in the 19th century, 16th century, 17th century or 18th century? And students, answer for this is 17th century. What do you mean by the fly shuttle? The device, तो हमने अभी किया था कि फ्लाई शटल कहते थे किसको? जो वीवर्स यूज करते थे. सो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है एमसीक्यू का कि फ्लाई शटल का मतलब क्या है? The device which places horizontal threads the weft into the vertical threads of warp, a mechanical device which increased production in factories, both these two, or a mechanical device used by weavers moved by means of ropes and pulleys. So बच्चों, इसका आंसर ए ये है, सी ये है. तो ये था both A and C. तो उससे आपको पता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी. What was the first symbol of factory system? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ था? Cotton, wheat, jute, or none of these? And answer for the students is it was cotton, which was the first symbol of factory systems. What made workers become hostile to the spinning jenny? It had reduced the demand for labor. To some people, machines appeared as monsters. Common people had not yet accepted machine-made products, or handmade goods were still popular. Students, तो जो workers थे, why they became hostile to the spinning jenny? Answer is because it had reduced the demand for labor. What are the problems faced by the cotton weavers in India? They did not have good quality of cotton. Export market had collapsed. Imported goods were cheap, or all of these options were the problem. And students, answer for this is जो कॉटन वीवर्स थे इंडिया में, वो सारी प्रॉब्लम थी उनको. उनके पास अच्छी क्वालिटी कॉटन नहीं थी, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया था, और जो इंपोर्ट होता था सामान वो ज़्यादा सस्ता था. सो ऑल ऑफ द अबव. The person who got people from village, ensured them jobs, helped them settle in cities and provided them money in times of need was known as stapler, gomastha, jobber or fuller.
सो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ हम सब चीज़ें और भी समझ लेते हैं। पहले तो इसका जो आंसर है वो है जॉबर। जॉबर एक एम्प्लॉय होता था, ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, जो कि रिक्रूट करता था लोगों का। फुलर उसको कहते थे जो कि जब वीविंग होती थी तो प्लीट से कपड़ों को तय लगाता था। गोमस था एक एम्प्लॉय था ऑफ द कंपनी, जो कि सुपरवाइज करता था कि कॉटन की क्वालिटी कैसी है और लोगों को उधार दे के उनसे कलेक्ट करता था प्रोडक्शन। सो आंसर इसका है जॉबर। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड? कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास या बॉम्बे? बॉम्बे। इसका आंसर बच्चों बॉम्बे है। हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं क्योंकि आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे अपने बुक में फैक्ट्रीज कम अप हेडिंग में, द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854 and it went into production 2 years later. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,150 looms. Around the same time, jute mills came up in Bengal. तो यानी कि तकरीबन बॉम्बे में जब कॉटन मिल आई उसी टाइम बंगाल में कौन सी मिल्स आई? जूट मिल्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको आता है कि जूट मिल्स कहाँ पे आई तो आपका आंसर बंगाल होना चाहिए, और अगर कॉटन मिल आई तो उसका आंसर बॉम्बे होना चाहिए। सो इसका आंसर है द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। When did the earliest factories came up in England? In 1735, 1730s, 1750s or 1748s? इसका आंसर स्टूडेंट्स है in 1730s was the time when the earliest factories came up in England. When did the export of Indian yarn to China decline? 1902, 1906, 1915 और 1910? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है 1906। थोड़ा हम और पढ़ते हैं कि वाई डिड इट डिक्लाइन, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न डिक्लाइन इन चाइना ड्यू टू व्हाट रीजन। लेट्स सी व्हाट बुक सेज। सो स्टूडेंट्स, आप देखोगे फ्रॉम 1906 moreover the export of Indian yarn to China declined, यानी कि 1906 से इंडिया का जो यार्न था चाइना में एक्सपोर्ट होना डिक्लाइन हो गया। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड द चाइनीज मार्केट। तो चाइना में जो बनता था और जापान में जो बनता था उससे चाइनीज मार्केट भरा हुआ था, इसलिए इंडिया का यार्न चाइना में जाना कम हो गया। तो उसके बाद क्या किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने? सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगैन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। तो यार्न से क्लोथ में आ गई। यार्न से क्लोथ बनता है तो उन्होंने बोला कि अच्छा यार्न नहीं ले रहे हैं चाइना में तो हम यार्न से क्लोथ बनाते हैं। सो कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912। सो जब क्लोथ में आ गए तो कॉटन की जो प्रोडक्शन थी, पीस प्रोडक्शन की, ऑलमोस्ट डबल हो गई। सो इसका तो आंसर मैं चेक कर ही लिया। इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम 1906। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी? बिरला इंडस्ट्रीज, एल्गिन मिल, एनरी यूले या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एनरी यूले। What do you mean by carding? In spinning, in weaving, in which cotton wool fibers are prepared for spinning or in which finishing of clothes is done? तो स्टूडेंट्स, जो कार्डिंग होता है उसका मतलब होता है कॉटन और वूल फाइबर्स को पहले स्पिनिंग के लिए प्रिपेयर करना। उसका आंसर है विच कॉटन और स्पिनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्ड द प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम क्लॉथ? इंपोर्ट ड्यूटीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, imposition of export duties और technological changes? Students, इसका आंसर है technological changes. What do you mean by Orient? Countries to the east of Mediterranean, all countries except Europe, countries which are traditional, mysterious and pre-modern. Students, इसमें जो ऑप्शन ए है वो है countries to the east of the Mediterranean, और जो बी ऑप्शन है वो है countries which are the traditional, mysterious and प्री मॉडर्न, और इसका आंसर भी यही है, बोथ ए एंड बी। एंड स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 2। एंड मैं आशा करता हूँ, आई होप आपने मेरा ये वीडियो लाइक किया होगा। इफ यू हैव, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वर सप्लाई
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम इंडियन फैक्ट्रीज। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो इंडियन फैक्ट्री से क्या सप्लाई होता था? टेंट्स एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स, जूट बैग्स एंड क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, और ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इंडिया से ये सब कुछ एक्सपोर्ट होता था। Thank you children for watching this video. I wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching and keep sharing.